Good morning to you all. How are you all? Fine? Okay. So students, today we are going to study subject English of class 2nd. Okay? Yes. So in the previous lecture we have studied up till the synonyms, opposites and put a letter in the correct order, right? Yes. Now we are moving further with the next exercise. See, what is that? Write the answers in the one word. So in this exercise you have to write it in your CW. Okay? Yes. So see now, what is the first question? What does little monkey want to be? Okay. अब हमने स्टोरी पढ़ी थी, ठीक है? So do you remember जो little monkey था उसको क्या करना था? Again, what does little monkey want to be? उसको क्या बनना था? लिटिल मंकी जो था स्टोरी में हमने देखा था, व्हाट ही वांटेड टू बी, उसको क्या बनना था? ही वांटेड टू बी स्ट्रांग। तो स्ट्रांग हमको सिर्फ वन वर्ड में आंसर देना है। ओके, सो सिर्फ स्ट्रांग लिखेंगे। तो स्ट्रांग का स्पेलिंग क्या होता है? STRONG, स्ट्रांग। अगेन वापस पहले से देखो, व्हाट डज लिटिल मंकी वांट टू बी? So little monkey को क्या बनना था? He wanted to be strong. Okay, तो strong का स्पेलिंग क्या है? STRONG, strong. तो your first letter should be capital. Okay. Now see next question. Who hears him? Means जब monkey बोल रहा था तब उसको किसने सुना था? This we have learned in the story. Who listened him? Who hears him? A wise woman. किसने सुना था? So first one, A should be capital. A wise woman. तो wise का स्पेलिंग क्या होता है? WISE, wise. Then after woman, तो woman का स्पेलिंग क्या होता है? WOMAN, woman. Again, who hears him? A wise woman. तो wise का स्पेलिंग क्या होता है? WISE, wise. WOMAN, woman. Okay, clear? Now next, how does an elephant have bath? So elephant bath कैसे लेता है? How does an elephant take a bath? So देखो क्या लिखना है? An elephant feels his trunk. Elephant कैसे बात लेता है? हमने देखा था स्टोरी में, राइट? कि जो उसकी ट्रंक मीन्स जो उसकी सूंड होती है उसमें वो पानी भर के फिर वो अपने ऊपर वो सूंड में से पानी अपने ऊपर डाल देता है ना? तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। एन एलिफेंट, एलिफेंट का स्पेलिंग क्या होता है? ELEPHANT, एन एलिफेंट फील्स, फील्स मीन्स feels his trunk. ट्रंक का स्पेलिंग क्या होता है? TRUNK, fills his trunk with water. So with WITH, with water. Then after क्या है? And blows it over himself. So A and the N, blows, BLOWS, blows over himself, है ना? Again, how does an elephant have a bath? Elephant bath कैसे लेता है? तो यहाँ से an elephant, elephant का स्पेलिंग क्या होता है? LELEPHANT, elephant feels his trunk with water and blows over himself. तो वो क्या करता था? अपनी जो सूंड है, अपनी जो ट्रंक है उसमें पानी भर के फिर वो पानी अपने आप के ऊपर डाल देता था। ओके, नाउ सी व्हाट इज द फोर्थ नंबर? डज द ज़ेब्रा हैव स्पॉट्स और स्ट्रिप्स? तो ज़ेब्रा की बॉडी पे क्या था? स्पॉट्स थे कि स्ट्रिप्स थी? स्पॉट्स मींस दिस टाइप ऑफ डॉट्स जो चित्ता की बॉडी पे होते हैं ना, दिस टाइप ऑफ स्पॉट्स यू हैव seen on the body of the cheetahs, right? But जो zebra था उसकी बॉडी पे कैसे स्ट्रिप्स थे? स्ट्रिप मींस like this, black and white. Then after again
white, black, white. It is given like this. No, strips means like this. So zebra की body पे क्या था? Strips था. So from here just you have to write the strips. So strips का spelling क्या होता है? S-T-R-I-P-E-S. Again strips का spelling क्या है? देखो वापस. See it again. देखो. Does the zebra have spots or strips? तो zebra की body पे क्या था? Strips थे. तो strips का spelling क्या है? S-T-R-I-P-E-S. Strips. Okay. अब देखो next. Why does little monkey want to be himself again? तो जो little monkey है उसको वापस अपने जैसा क्यों बनना था? उसका आंसर हम क्या लिखेंगे? Because का स्पेलिंग क्या होता है? B-E-C-A-U-S-E. Because he found himself look like a monster. जब उसने जो मंकी था, हमने पढ़ा था ना स्टोरी में, जब मंकी ने विश की थी मैजिक वैंड, मतलब मैजिक वाली जो स्टिक अपने हाथ में लेके विश की थी कि मुझे ज़ेब्रा के जिराफ के जैसा नेक चाहिए, एलिफेंट के जैसे ट्रंक चाहिए, ज़ेब्रा के जैसे स्ट्रिप्स चाहिए बॉडी पे, है ना? तो वो जब वो उस सारी विशेस उसकी कंप्लीट हो जाती है, जब वो रिवर में जाके देखता है अपने आप को, तो उसको क्या दिखता है? वो अपने आप को कैसा समझता है? ही लुक्स लाइक मॉन्स्टर. ओके, तो वो क्या सोचता है कि मैं मॉन्स्टर के जैसा दिखता हूँ, इसलिए मुझे इतना गंदा नहीं दिखना है, मुझे पहले जैसे मैं था मुझे वैसे ही बनना है. इसलिए वो क्या सोचता है? Because he found himself look like a monster. क्यों उसने अपने आप के जैसा बनना था? वापस उसको अपने आप के जैसा बनना था क्योंकि जब उसने रिवर में देखा था, उसकी विश कंप्लीट हुई उसके बाद, तो वो कैसा दिखता था? मॉन्स्टर के जैसा. Okay, so clear up till question answers. Now see on the page number 31. This is your Marigold workbook. Yes, now see on the page 31 this exercise. क्या है देखो? Count and write. You have given example also here. See. कितनी पेंसिल है यहाँ पे? 1 पेंसिल. यहाँ पे कितनी है? 1 2 3. काउंट करना है और लिखना है. सिंगुलर है तो यहाँ प्लूरल हो जाएगा. 1 पेंसिल, 3 पेंसिल्स हो गया. अब देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज की है. नेक्स्ट फर्स्ट नंबर से क्या स्टार्ट हो रहा है? बॉल दिया हुआ है तुमको. तो कितने बॉल है? इस साइड पे कितने बॉल है? 1 बॉल. तो ऐसे लिखेंगे 1. देन बॉल का स्पेलिंग क्या होता है? B-A-L-L. 1 बॉल. देन आफ्टर काउंट दिस 1 2 3 4 5 and 6. तो कितने बॉल्स हुए? 6 बॉल्स है. तो 6 के बाद B-A-L-L. लास्ट में हम S लगाएंगे यहाँ पे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 है, एक से ज्यादा है, इसलिए बॉल्स हो जाएगा बॉल की जगह पे. समझ आया? सिर्फ पीछे S लगाना है. अब नेक्स्ट देखो, ये क्या दिख रहा है तुमको? What is this? This is an apple. Right. So कितने एप्पल है? Again 1 एप्पल. एप्पल का स्पेलिंग बोलो. A-P-P-L-E. एप्पल. ओके, 1 एप्पल. अब यहाँ पे एप्पल काउंट करेंगे. 1 2 3 4 and 5. तो कितने एप्पल्स हुए यहाँ पे? 5 एप्पल्स, है ना? समझ में आया कैसे लिखना है? अब देखो थर्ड नंबर. कितने रोज है यहाँ पे? 1 रोज. तो हम क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे 1, फिर रोज का स्पेलिंग. तो रोज का स्पेलिंग बताओ. R-O-S-E. रोज, है ना? तो अब काउंट करो कितने रोज है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. सो कितने रोजेस हुए? 10 हुए. तो 1 0 10. उसके बाद रोजेस. तो R-O-S-E-S. रोजेस का स्पेलिंग लिखना है. ठीक है? उसी तरह यहाँ पे काइट है और ये बर्ड है. ये दोनों तुम लोग अपने आप करना. ओके, आप टर्न पेज करो. देखो क्या है पेज 32 पे. क्या है? सेम थिंग उसी तरह से करना है. हाउस है. कितने हाउस है यहाँ पे? 1 हाउस.
यहाँ कितने हैं 1 and 2, सो 1 हाउस 2 हाउसेज, उस तरह से करना है। समझ आया? अब देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, पेज 33 पे क्या दिया हुआ है, लेट्स राइट। ये तुमको दिया है कर्सिव राइटिंग। ओके, तुमको कर्सिव राइटिंग की बुक भी आती है ना स्कूल में से, यस। सो इसमें मैं सिखाऊंगी तुमको, वो बुक में भी उसी तरह से करना है अगर कर्सिव राइटिंग आता है तो। ठीक है, देखो कैसे लिखा हुआ है, 4 लाइन्स आर देयर, 1 रेड लाइन, देन 2 ब्लू लाइन्स है, और अगेन उसके बाद एक और रेड लाइन है, लाइक दिस 4 लाइन्स आर गिवन। यस, तो अब देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पहले एम है। ओके, सो यू विल स्टार्ट विद एम, पर कहां से स्टार्ट हो रहा है, देखो ब्लू लाइन से स्टार्ट हो रहा है, सो यू विल स्टार्ट विद हियर, यहां से। दिस इज रेड लाइन, दिस इज ब्लू लाइन। ओके, देखो यहाँ पे ये ब्लू लाइन से स्टार्ट हो रहा है, सो हमको ये 2 लाइन में लिखना है यहाँ से। अगेन दिस इज रेड लाइन, सो यहाँ से लिखेंगे 1, यहाँ से इससे जाएगा। ओके, इस तरह से लाइन की, फिर उसके बाद एक सीधी लाइन करनी, स्टैंडिंग लाइन किया, एक स्लैंटिंग लाइन, एक यहाँ से ऐसे सीधी लाइन जाएगी, उसके बाद यहाँ से एम बनाएंगे। समझ आया कैसे करना है? देखो पहले 2 लाइन है, 4 लाइन है कि ठीक है ना, तो उसमें हमको 2 ब्लू लाइंस में लिखना है, तो हम ये वाली ब्लू लाइंस जो नीचे की ब्लू लाइन है वहां से स्टार्ट करेंगे, 3rd लाइन है, 3rd से ऊपर 2nd तक जाएंगे, स्लैंटिंग लाइन, उसके बाद एक स्टैंडिंग लाइन करना है, फिर यहाँ से ऐसे करके ऐसे एम बनाएंगे। हो गया एम, समझ में आया? यहाँ से यहाँ तक टच होना चाहिए ब्लू लाइन तक। ओके, अब देखो एन कैसे बनाना है, वापस एक और आएगा, ये पूरी लाइन तुमको लिखना है ऐसे एम। ठीक है, एम के पास में क्या है, देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है, वैसे ही लिखना है, पूरी लाइन नीचे एम, फिर पूरी लाइन एन। तो अब एन कैसे बनाएंगे, देखो अगेन ब्लू लाइन में जाना है तुमको, लाइक दिस यू हैव टू। अगेन 4 लाइंस है, 1 2 3 4, ऊपर की रेड लाइन और नीचे की रेड लाइन छोड़ देंगे क्योंकि ये स्मॉल एबीसीडी है ना। यस, तो एन कैसे लिखोगे, अगेन स्लैंटिंग लाइन, एक स्लैंटिंग लाइन बनानी है, बनाई। ओके, उसके बाद एक स्टैंडिंग लाइन, सीधी लाइन करो, हो गई। अब उसके बाद एक बार ऐसे करना है, पहले हमने इस तरह से किया था ना, अब हमको इसको एक बार ऐसे ले जाके इस तरह से एक ही बार एन करना है। डन, हो गया एन। अब देखो ओ कैसे बनाना है, यहां से लाइन स्टार्ट करेंगे, इस तरफ गए, कितना लिया, सी के जैसे यहां से ले जाके यहाँ कर्व बनाना है, कर्व हो गया, उसके बाद ये सर्कल और इसको अंदर से फोल्ड करना है। अगेन देखो नीचे की ब्लू लाइन से ले गए, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा कर्व बना देंगे, फिर इसको यहाँ से वापस पूरा सर्कल करके इसको ऐसे, ओ हो गया। अब पी देखो कैसे बनाएंगे, स्लैंटिंग लाइन, एक स्लैंटिंग लाइन ले ना, उसके बाद हम इसको करेंगे सीधी लाइन, कहां तक, नीचे तक लेके जाना है उसको, रेड लाइन तक। अब पी में देखो, यहाँ पे डिफरेंस है पी में, पी को कहां से स्टार्ट करोगे, ब्लू लाइन से स्टार्ट किया, स्लैंटिंग लाइन ऊपर ब्लू लाइन तक गई, फिर ब्लू लाइन से स्टार्ट करके नीचे लास्ट रेड लाइन तक लाना है, फिर क्या करोगे, यहाँ से जो ब्लू लाइन है वापस वहां से ऐसे करना है। हो गया पी, वापस देखो कैसे करना है, ब्लू लाइन से लास्ट रेड लाइन तक, उसके बाद ऊपर ब्लू लाइन में ऐसे बनाना है, पी हो गया। अब लास्ट देखो क्यू है, तो क्यू कैसे बनाओगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, किया स्लैंटिंग लाइन, फिर यहां से इसको कर दो ऐसे, अब ये लास्ट तक जाएगा और ऐसे 9 बनाते हो ना तुम लोग, 9 बनाना है, एक लाइन आगे से स्लैंटिंग लाइन और एक लाइन नीचे से ऊपर तक जाएगी। समझ आ गया, ये ब्लू लाइन तक की आनी चाहिए, उसके ऊपर नहीं। क्लियर तुमको कैसे करना है? ओके, सो वी विल मीट इन अ नेक्स्ट लेक्चर. We have completed up till page 33. Okay? Yes. So till that, bye bye. Thank you.